Hello student, how are you all? I hope you all are good and you are doing a study properly. As you know very well, now our chapter 1 is going on. So here chapter 1, last part and fourth part of this chapter, super senses. As you know, super senses chapter is very interesting. Okay, and it's all about human, animals, senses. So I hope you understood part 1, part 2, part 3. But here today I am going to start your explanation part 4. So here let's start super senses explanation part 4. Okay, in this part very interesting things are given in your textbook. Okay, and one activity also you have to do. In the end I'll explain how to do that activity, so please look at this video. So now students, your chapter number 1, this is part 4 of this chapter. I hope you understood part 1, part 2 and part 3. We have done a lots of things of this chapter. Okay, last in part 3 I explained about sleeping slot. Okay, sleeping timing of the all animals. So here we'll talk about tiger. Okay, so one big picture is given in your textbook, page number 13. You can see page number 13. Okay, so this is a big picture is given. First of all we'll learn about it. Tiger. Okay, tiger is what? Here tiger can see 6 times better at night than most of us. Tiger can see 6 times better. Okay, वो हमसे कई ज़्यादा, मतलब 6 times, not only 1 time, 6 times better वो देख सकता है नाइट में. हाउ? देखो, सपोज यू आर गोइंग समवेयर, ओके, एंड यू कांट सी प्रॉपरली. इफ एनीवेयर इज डार्क, अंधेरा होगा तो आप नहीं देख सकते हो. बट हियर टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट. हमसे भी ज़्यादा 6 टाइम बेटर देख सकता है. सो दिस पैराग्राफ यू हैव टू learn on read. Understood? Next paragraph is given here, same about tiger. देखो, one thing is given, tigers whiskers are very sensitive. उनकी जो मूछें होती है, जैसे कहते हैं ना विस्करिंग, आपने कैट के माउथ पे देखा है, लाइक विस्कर्स होती हैं, ठीक है, मूछें होती हैं. ओके, कैट की विस्करिंग होती है, या उसकी जो किटन होते हैं, किटन्स के फेस पर, किटन के फेस पर होती है. सो दैट इज़ विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस the movements or vibration in air. you know in vibration in air, हवा में जो vibrationous movement होता है, okay, they can sense. उस चीज़ का उनको सेंस होता है. जैसे हम लोग कहते हैं ना, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ साइट, like these can sense the movements or vibrations in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. उनके शिकारियों को फाइंड करने में वो बहुत हेल्पफुल होते हैं. They help द टाइगर मूव इन डार्क. ओके, और नाइट में उनको मूव करने के लिए, फाइन, एंड उनके शिकारियों को पकड़ने के लिए. इट मीन्स उनके प्रे जो होते हैं, उनके शिकारियों को पकड़ने के लिए वो बहुत हेल्पफुल हैं. ओके, सो अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ ऑल्सो. प्लीज़ रीड 1 टाइम एंड प्लीज़ लर्न ऑल्सो. इट्स ऑल अबाउट टाइगर. नेक्स्ट, सी हियर द टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प. एज यू नो, बहुत शार्प होता है. ओके, और उनके जो शिकारी होते हैं उनको पकड़ने के लिए उनको जस्ट ओनली उनकी थोड़ी सी वॉइस चाहिए होता है, थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए होता है, एंड सडनली वो टाइगर्स अपने शिकारी को पकड़ लेते हैं. वो बहुत लाइक कहते हैं ना, अलर्ट रह के आते हैं. फाइन, नाउ इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास. इट मीन्स वॉट? दे कैन फाइंड आउट, ओके, दे कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन रस्टलिंग ऑफ द लीव. इट मीन्स जो लीव्स की जो आवाज़ होती है ना, जब पत्ते हम लोग दैट एयर चलती है, ओके, हवा चलती है, ऑन दैट टाइम लीव्स आर रस्टलिंग. सो दैट साउंड एंड साउंड ऑफ एनिमल इन अनदर एनिमल. ओके, अनदर एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास. सपोज rabbit is moving on the grass, deer and rabbit or deer moving on the grass. So they can make out the difference between rustling of the leaves and the sound of other animals. Okay, the ears of the tiger. The ears of the tiger can move in different directions. जो tigers की ears होते हैं, they can also move in the different directions, and this helps to catch the sound from all around. Okay, this thing, it's very helpful for them, so they can
कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड, वॉट एवर साउंड्स इज़ देयर अराउंड दैम, उनके चारों तरफ जो भी साउंड होता है वो अच्छे से कैच कर लेते हैं, ओके। एंड उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ से कोई शिकार करने के लिए या कोई उनको शिकार करना है। इट मीन्स उनका जो फ्लैश फूड खाते हैं उन्हें फाइंड आउट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं उनके सेंस ऑर्गन्स। मतलब सेंस ऑर्गन्स में आता है ओके जो ईयर्स है, इट मीन्स लाइक योर सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ साइट, ओके, सेंस ऑफ स्मेल, एवरीथिंग इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर देम। Two things also given in columns. Tigers make different sounds for different purpose, like when it is angry or to call out to a tigress, okay, it means जब वो टाइगर्स अपने टाइग्रेस को बुलाते हैं, शेर जैसे चीता होता है, ठीक है, तो चीता जब अपनी टाइग्रेस को बुलाता है, ओके, सो इट मीन्स क्या करते हैं, अलग अलग साउंड क्रिएट करते हैं अलग अलग पर्पज़ से। जब वो एंग्री होते हैं तब कुछ और साउंड होता है, किसी को बुलाते हैं, ओके, तब कुछ और साउंड होता है, और वो दहाड़ते हैं, लाइक इट कैन ऑल्सो रॉरिंग और स्नैरल, ओके, इसको बोलते हैं स्नैरल एंड रॉर, मतलब दहाड़ना, बहुत ज़ोर से आवाज़ करते हैं। एंड इट्स रॉर कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे, उनके रॉरिंग की आवाज़ 3 किलोमीटर्स तक भी जाती है। यू नो व्हाट इट मीन्स, आप 3 किलोमीटर्स दूर होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वन टाइगर अदरवाइज लायन इज़ रॉरिंग, ओके। स्नैरल मतलब हम रॉरिंग जो दहाड़ते हैं, बहुत तेज़ चिल्लाता है टाइगर, तो ऑन दैट टाइम हम 3 किलोमीटर्स भी दूर होंगे ना तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई दे जाएगी। सो अंडरस्टूड कि कहाँ से सुन सकते हैं, इट्स रॉर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। इस टाइगर हियर, next, is tiger had its own area which may cover several kilometers. You know what, is tiger has a own area and which may cover several kilometers, मतलब कई किलोमीटर्स तक उनका एरिया वो खुद फाइंड आउट करके रखते हैं, ओके। एंड टाइगर्स मार्क देयर एरिया, सपोज लाइक इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट कि डॉग्स मार्क ऑन देयर ओन एरिया, इट मीन्स वो खुद के एरिया को मार्क कर देते हैं वेन एवर दे डू washroom, like whenever they do potty and all, so this time same like that tigers marks their area with their urine, same like dog, okay, जैसे dog mark कर देता है ना अपने एरिया को, same like that also mark their own area. A tiger can at once, okay, come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. Do you know how they get to know that कि अदर एनिमल और अदर टाइगर इज़ देयर इन देयर एरिया? इट मीन्स स्मेल ऑफ द यूरिन, इट मीन्स सेंस ऑफ स्मेल, ओके, अदर एनिमल के यूरिन से, और वो पहचान लेते हैं कि उनके एरिया में किसी और एनिमल ने एंटरिंग की है, ठीक है। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, किसी और टाइगर के एरिया में जाने को अवॉइड करते हैं, नहीं जाते हैं। तो ए टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया, ओके, वो किसी और टाइगर के एरिया में जाने से अवॉइड करेगा, ठीक है। अंडरस्टूड दिस होल पिक्चर एंड वॉट एवर इट्स गिवन अबाउट टाइगर, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, प्लीज़ रीड 5 columns, okay. Now next, here is some most important thing. The tiger is one of the most alert animals, okay. The tiger होते हैं वो सबसे ज़्यादा अलर्ट होते हैं, एंड यट अभी तक टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर, और आज टाइगर खुद डेंजर में है, क्योंकि टाइगर्स की जो कहते हैं काउंटिंग है बहुत कम हो गई है, ठीक है, तो टाइगर्स ना बहुत कम हो गए हैं, तो अभी टाइगर्स डेंजर में हैं। सो व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन जंगल? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिन्हें अब टाइगर को डर लगने लगा है? टाइगर इन जंगल दे आर वेरी डेंजर, ओके, वो डेंजर में है, उनको खतरा है। कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी थ्रेट टू एनिमल्स? हाउ? ऑल द आंसर विल गिव यू, डोंट वरी. Now see, these questions are given in your textbook, as I told you that in page number 13 is given. So just you have to write in your fair notebook, okay. फेयर नोटबुक में आपको लिखने हैं इसके आंसर्स, बट जस्ट मेंशन पेज नंबर, ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज देयर कि द टाइगर इज़ द मोस्ट
alert animals, and yet today tigers in danger. So what do you think are some of the dangers to tigers in the jungle? So your answer is hunters and poachers. Okay, जो hunters and poachers जो शिकारी होते हैं are the biggest threat for tiger. Okay, it means वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है. हंटर्स जो होते हैं, शिकारी जो टाइगर्स का शिकार करने जाते हैं, दे आर द वेरी डेंजर. ओके, और वो किसके लिए डेंजर हैं? थ्रेट्स हैं, खतरा है टाइगर के लिए. सेकेंड लाइन, दे किल टाइगर्स फॉर स्किन. वो टाइगर्स को उनकी स्किन के लिए मारते हैं. लायन इज़ मोर पावरफुल देन टाइगर, सो एंड कैन बी डेंजर फॉर टाइगर. डू यू नो लायन इज़ मोर पावरफुल देन टाइगर एंड कैन बी डेंजर फॉर टाइगर्स ऑल्सो. तो टाइगर के लिए तो डेंजर कौन हुआ? लायन भी हुआ, ह्यूमंस भी हुए, इट मीन्स हंटर्स भी हुए. एंड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन फॉर फॉरेस्ट is another major danger for tigers. Do you know large scale for destruction? It means सब नष्ट हो जा रहा है. ओके, एकदम पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट होता जा रहा है. ठीक है, ओके, इट मीन्स डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, पूरी तरह ख़त्म होता जा रहा है. तो दैट इज़ ऑल्सो डेंजर फॉर टाइगर, बिकॉज आप उनका घर बेकार कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन कर रहे हो उसका पूरी तरह से. बहुत बड़े स्केल में हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो डेंजर फॉर टाइगर्स. अंडरस्टूड दिस आंसर? Okay, next answer. Second number, can human beings also be a threat to animals? How? It means humans also threat to animals. हम भी उनके लिए खतरा है ना. यस, हम तो बहुत बड़े खतरा है उन लोगों के लिए. एनिमल्स के लिए हम सबसे बड़े ओके खतरा है, बिकॉज हम लोग उनका फॉरेस्ट, इट मीन्स उनका घर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं. हम उनको मार भी देते हैं फॉर स्किन एंड ऑल. तो कई सारे ऐसे ह्यूमंस होते हैं. ओके, नाउ answer is yes, human beings can also be a threat to animals. Human beings kill animals for hidden other body parts. For example, elephants are killed for their tusk. Just I told you that. Okay, rhinos are killed. जो गेंडे होते हैं उनको मारा जाता है उनके हॉर्न्स के लिए, उनके जो हॉर्न सींग होते हैं ना उनके लिए. Snakes and crocodiles are also killed for their skin. स्नैक्स एंड क्रोकोडाइल्स को भी उनकी स्किन के लिए मारा जाता है. इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. इंक्रीज़ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होता है, हैज़ लीड टू डिस्ट्रक्शन. इट मीन्स पूरी तरह से सब कुछ फॉरेस्ट को नष्ट कर देता है. डिस्ट्रक्शन मतलब ख़त्म कर देता है. ठीक है, दिस हैज़ रिड्यूस द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स. ओके, ये एनिमल्स की जो नेचुरल हैबिटेट है, हम लोग जैसे हैबिटेट हैं इन आवर होम. ओके, हमारे घर को कोई पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे तो हमें कैसा लगेगा? वी कांट लिव ना. सो हमें ऐसा लगेगा ना हमें डेंजर है, हमें खतरा है. कोई भी आके अगर हमारा घर तोड़ दे, डिस्ट्रॉय कर दे. सो सेम लाइक दैट दिस हैज़ रिड्यूस द नेचुरल हैबिट ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की जो नेचुरल हैबिटेट है, इट मीन्स वो जहाँ रहते हैं हम उसी को डिस्ट्रॉय करते आ रहे हैं. सो दिस आंसर ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक. ओके, अंडरस्टूड? सो यू कैन स्टार्ट इन फेयर नोटबुक all the textbook question answers. Only textbook question answers you have to write in your fair notebook. Please write it down properly, neat and clean. Okay, students? So all the question answers of this textbook I mention in your videos. So जो भी videos में मैंने आपको mention किए हैं, please write down all the question answers. Okay, in your fair notebook also. But do you know that today many animals are killed and their parts आर सोल्ड. आज के टाइम में बहुत सारे एनिमल्स को मारा जाता है एंड उसके पार्ट्स ना बेच दिए जाते हैं. एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क. ओके, एलिफेंट्स की जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनको बेच दिया जाता है, उनको मार के. ठीक है, एंड राइनोसरेस फॉर इट्स हॉर्न. उनके सींग के लिए, जो गेंडे होते हैं ना, ओके, वो उनके सींग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. तो उनके सींग जो होते हैं, हॉर्न होते हैं, वो उसे बेच दिया जाता है राइनोसरस को. एंड टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, स्नैक्स फॉर देयर स्किन. यू नो, टाइगर्स की स्किन से आपने देखा होगा कितने क्लोथिंग पहनते हैं टाइगर की स्किन वाले. क्रोकोडाइल ऑल्सो. स्नैक स्किन के, स्नैक के स्किन के जो कपड़े बनते हैं, ओके, और उनकी स्किन का यूज़ किया जाता है. एंड मस्क डियर, okay, are killed just to make a little scan from its musk.
सो मस्क डियर को भी माना जाता है एक लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क. इट मीन्स मस्क मीन्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग रेडिश ब्राउन सब्सटेंस विच इज़ क्रिएटेड बाय द मेल मस्क डियर. इट मीन्स जो हिरन होता है, ओके, कस्तूरी हिरन कहते हैं, उन्हें पहले मारा जाता है. क्यों? जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क, उनके मस्क में से ओके सेंट बनाने के लिए. एंड पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल हंटर्स एंड पोशर्स. ओके, जिन्हें हंटर्स मतलब कहते हैं ना, शिकार करने वाले को हंटर्स कहते हैं, तो उन्हें हंटर्स कहा जाता है. पीपल जो लोग उनको मारते हैं. तो आजकल कौन डेंजर में है, ह्यूमन या एनिमल्स? एनिमल्स डेंजर में है. ठीक है, सो प्लीज़ लर्न दिस पैराग्राफ अगेन कि आप कितने एनिमल्स हैं जिनके पार्ट्स बेच दिए जाते हैं. तो एनिमल्स जो हैं उसमें से एलिफेंट आर किल फॉर देयर टस, उनके दांत के लिए. राइनासोर्स फॉर इट्स हॉर्न. टाइगर्स, क्रोकोडाइल, स्नेक फॉर देयर स्किन. एंड मस्क डियर इज किल जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क. इट मीन्स मस्क मैंने बताया ना स्ट्रॉन्ग, ओके, स्ट्रॉन्ग होती है इसकी स्मेलिंग एंड रेडिश ब्राउन सब्सटेंस होता है. एंड विच इज क्रिएटेड बाय द मेल मस्क डियर फॉर सेंट मार्किंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट टू परफ्यूमरी. परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए उसे कहते हैं मस्क. ओके, एंड हियर पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड hunters. Okay, if I'll ask about hunters define, then you can tell me people who kill animals are called hunters. Understood this paragraph? And answer I'll give you of this first number and second number. Okay, one more thing here, see the number of tigers and many other animals in our country is reducing. Do you know a number of tigers also and many other animals in our country is reducing? क्यों कम होते जा रहे हैं? कि there is a danger that some of them will soon disappear because बहुत ज़्यादा डेंजर है. हम लोग फॉरेस्ट को काट देते हैं. जस्ट आई टोल्ड यू इन प्रीवियस स्टैंडर्ड कि वी आर कटिंग लॉट्स ऑफ ट्रीज, ओके, एंड jungle, it means a forest also. So that's why some of them will soon disappear. कुछ उनमें से बहुत जल्दी disappear हो जाएंगे जो हमें दिखेंगे ही नहीं. To protect them, okay, to protect the animals, our government has made some forests as protected areas. Here some of them are, okay, some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. Okay, so these are the protected areas. Okay, it means some forests as a protected area government has made for animals. So we can learn कि Ghana in Bharatpur district and National Park in Uttarakhand. Okay, in these area nobody can hunt animals or destroy the jungle because they are protected area ना. तो no one can and no one can hunt animals also, no one can destroy the jungle. So that's why very important thing and we have to follow this. We don't hunt the animals. Okay, ठीक है, इतना पता चला एनिमल्स के बारे में. Now see some questions are given in your textbook. As you know, it's page number 13. Okay, 2 questions are given and again you have to write in your fair notebook all the textbook question answer you have to write in your fair notebook. And PDF I'll send you, don't worry. And maybe workbook is there. Okay, then workbook also PDF I'll send you, don't worry. After finish this chapter, after complete this chapter complete होने के बाद ही सब कुछ मिलता है ना. So don't worry about it and don't ask me in lecture कि मैम PDF कब भेजेंगे, बिकॉज PDF तो बेटा चैप्टर फिनिश होने के बाद ही मिलता है. बट PDF से पहले आपको इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो फेयर नोटबुक में लिखने हैं फ्रॉम टेक्स्ट बुक. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज़ गिवन पेज नंबर 13. वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया? कहाँ पर है अदर नेशनल पार्क्स इन इंडिया में? सो विल मेंशन, सी इन आंसर, सम ऑफ द नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर एज फॉलोज. फर्स्ट है कन्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश MP में है. फिर है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में है. ओके, प्लीज़ मेंशन ऑल द नेशनल पार्क्स बिकॉज दीज आर नेशनल पार्क्स इन इंडिया. थर्ड, गिर नेशनल पार्क तो हमारे गुजरात में ही है, एज यू नो वेरी वेल. गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में ही है ना. ठीक है. रणथंभौर
नेशनल पार्क इन राजस्थान. ओके, रणथंभौर राजस्थान में है. दिस इज ऑल्सो नेशनल पार्क. नाउ ई. ओके, 5 नंबर सी. नागरोल नेशनल पार्क मैसूर. ओके, मैसूर में है नागरोल नेशनल पार्क. एफ. 6 नंबर पालामू नेशनल पार्क, दैट इज़ इन झारखंड. पालामू नेशनल पार्क इन झारखंड. ओके, आई होप यू गॉट ऑल द नेम ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया. ठीक है, सो प्लीज़ राइट डाउन इन योर notebook, in your fair notebook. Okay, next question is given. So next question, collect information on these and write a report. आपको ये सब information collect करनी है and write a report. Okay, so answer is what? National parks have been made to protect plants. National park ना plants के protect के लिए बने हैं. Okay, animals के protect के लिए भी बने हैं. And protecting animals and plants is necessary to protect our environment. Plant and animals are important, so it is necessary to protect our environment also. So some animals get special status in these parks. Do you know special status they are getting? Okay, in these parks, example है Kaziranga National Park gives special protection to rhinos which are very rare species in the world. जो गेंडे होते हैं ना rhinos, वो बहुत कम पाए जाते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, इसलिए उनके लिए बहुत स्पेशल प्रोटेक्शन है. सो rhinos के लिए बहुत स्पेशल प्रोटेक्शन है. तो दे आर वेरी वेरी रेयर स्पाइसेस, हमारे जो स्पाइसेस में आते हैं, बहुत रेयर में वर्ल्ड में पाए जाते हैं. सिमिलर, गिर नेशनल पार्क गिव्स स्पेशल प्रोटेक्शन टू लायंस. Okay, in our Gujarat, Gir National Park gives a special protection to lions, क्योंकि lions की भी जो स्पाइसेस बहुत कम है. so that's why we are giving a protection of lions. lion कम होते जा रहे हैं, hunters उनका शिकार करते जा रहे हैं for their useful, okay, for their use. so that's why I hope you understood both question answer. so please write in your fair notebook. Okay, here what we have to learn, first of all what we have learned, have you noticed that sometimes singers put their hand on their ear when they sing? कभी देखा है कि किसी को सिंगिंग करते हुए, जब वो सिंगिंग करते हैं on that time their ear when they sing, तो उनकी जो हैंड्स होते हैं वो अपने ईयर पर रखते हैं. why do you think they may be doing this? हमको इसका आंसर देना है. give examples of animal that may have very strong sense of sight, hearing or smell. You have to give the names and you have to do this answer. Okay, understood? Because I already told you in previous part 1, part 2 and part 3 कि sense of sight, sense of hearing, sense of smell, animals name I mentioned in previous video. So please look at that video and then you can give answers. Understood? And this activity you have to do. Let's make a paper dog. Can you make the paper dog? It's very easy. This is for you. Okay, for this you need thick paper. You have to take, first of all, thick paper. You have to take pencil, scissors, sketch pen. Okay, you have to take. So will you make the paper dog? If you know about it, then you can make. First of all, what you have to do, picture A you can see, picture B, okay, picture C and picture D. After that, Bobo, give your dog a name. Okay, this dog name you can give anything. Okay, this activity you have to do. See how to make this paper dog. This is the process how to make. कैसे बनाना है तो please look at here. First of all, cut a long strip of thick paper. Okay, thick paper को long strip पूरी तरह से cut कर लो. Mark the strip as shown here. Okay, हम लोगों को कैसे मार्क करना है, you can see हमें दिया हुआ है यहाँ पर. Make small cuts on the line marked 1 to 6. Okay, make a small cuts on the lines marked whatever you mark on a line. Okay, तो ये जो आपने किया है, ठीक है, मार्क किया है लाइनिंग पर 1 to 6. small cut you have to do. Third one, see, hook together the cuts on the number 1 and 2 and see pictures A. Picture A, according to picture A, see, according to picture A you can do this. First, okay, if you will do this and you will make this a paper dog,
okay, and I'll show in Zoom lecture. So please draw this paper dog. थर्ड पिक्चर ए के अकॉर्डिंग हमें बनाना है. Hook together the cuts on the number 1 and 2. In the same way, hook together 3 and 4 and 5 and 6. See picture B and C. In the same way, hook together 3 and 4 also and 5 and 6. See, you can see picture 3 and 4. See picture 3 and 4. It means this is 3 and 4 picture you can see, and after that see picture 3 and 4, 5 and 6 picture B and C. अब आपको नंबरिंग के अकॉर्डिंग करना है तो पिक्चर देखना पड़ेगा बी एंड सी. मेक अ कट इन द मार्क ऑन द लेग. सी पिक्चर सी. टर्न डाउन द कॉर्नर्स ऑफ द स्ट्रिप ऑन टॉप ऑफ द हेड टू मेक द ईयर्स. पिक्चर डी. Turn down the corners of the strip. It means turn down the corner of the strip on the top of the head to make the ears. Mark the eyes and nose with a sketch pen. Okay, you have to mark the eyes and the nose. Only nose and ears को mark करना है with a sketch pen. Understood? Okay, I'll show you how to make a paper dog. Don't worry in activity. So, but it's just fun for fun. Okay, so will you do this? I hope you will do this. So our chapter finished, student, but I'll show you how to make this paper dog. Please try this paper dog. How to make this paper dog? Okay, see how to make paper dog. Okay, paper dog कैसे बनाना है? So it's very easy. First of all, take all the things which I explain in your video. ठीक है, first of all make lines from 1 to 6. 1 to 6 make a line first of all, and a process I will explain you. Don't worry what the process of it, how to make paper dog. First of all, you can see in this picture 6 line, 1 to 6 you have to make. Got it? Will you draw this line? Now make eyes and nose of the dog. Nose and eyes you can make like this properly. Please look at this video, and I want to see your paper dog in your Zoom lecture. Everyone, you have to make this paper dog. This very interesting activity, and I'll show. Okay, I'll show here properly. Make cuts along with the lines. अब जहाँ जहाँ आपने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से कट कर दो. देखो प्रॉपरली कट करना है. प्लीज़ लुक एट दिस वीडियो प्रॉपरली. जहाँ जहाँ आपने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से कट करना है. नाउ किस लाइन में किसको ज्वाइन करना है? प्लीज़ लुक एट हियर. कट अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ थिक पेपर. थिक पेपर का लॉन्ग स्ट्रिप कट करना है, एंड मेक स्मॉल कट्स ऑन द 1 to 6. ओके, 1 to 6 आपको कटिंग करना है. नाउ हुक टुगेदर द कट्स नंबर 1 and 2. नंबर 1 and 2 को हुकअप करना है, मतलब उनको ज्वाइन करना है. हुक द कट 1 and 2. ठीक है, सेम लाइक इन योर टेक्स्ट बुक दिस प्रोसेस इज गिवन. नाउ इन द सेम वे हुक टुगेदर 3 and 4. सेम वे में हुक द लाइन 3 and 4. हुक द कट्स 3 and 4. 3 and 4 से जहाँ से आपने कट किया था वहाँ पर आपको क्या करना है, उसको हुक करना है. ठीक है, एक साथ. नाउ मेक अ कट इन द मार्क ऑन द लेग. सी, आप पिक्चर सी में आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इसमें देख सकते हो किस तरह से करना है कि मेक अ कट इन द मार्क ऑन द लेग. ओके, मेक अ कट इन द मार्क ऑन द लेग. पिक्चर सी में देखो, आपकी टेक्स्ट बुक भी ओपन करके रखनी है और वीडियो भी ओपन करना है. बहुत स्लोली बनाना है. हुक द कट्स ऑफ 5 and 6. नाउ कट्स करने हैं 5 and 6 को, उनको हुकअप करना है, एक साथ ज्वाइन करना है. देखो बहुत ईजी है. ओके, इफ़ यू विल डू देन आई विल सी योर डॉग. इट मीन्स पेपर डॉग इन Zoom lecture. Now next point. Turn down the corners of the strips on top of the head. ठीक है, टॉप ऑफ द हेड टू मेक द ईयर्स. पिक्चर डी की तरह ईयर्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टर्न डाउन द कॉर्नर्स ऑफ द स्ट्रिप ऑन द टॉप ऑफ द हेड. हेड की टॉप से आपको उसको टर्न करना है. ओके, ईयर्स बनाने के लिए पिक्चर डी में देख सकते हो. पिक्चर डी इट्स गिवन. नाउ मार्क द आईज एंड नोज विद द स्केच पेन से आपने किया होगा ना, नोज एंड आईज. स्केच पेन से नोज एंड आईज को ड्रॉ करना है. सी, कट करना है प्रॉपरली. ठीक है, प्लीज़ लुक एट दिस वीडियो. बहुत इजी है. देखो इतना मिडिल में से कट किया फॉर मेकिंग लेग्स.
इट मीन्स आपको लेग्स बनाने के लिए दोनों साइड से कट करना है एंड प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप विच ऑल द थिंग्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, पिक्चर्स देख के, पिक्चर्स भी दी हुई है ABCD एंड प्रोसेस ऑल्सो इज़ गिवन हाउ टू मेक अ पेपर डॉग। सो विल यू डू दिस? आई होप यू विल डू दिस एंड मैं सबके जूम लेक्चर में ये पेपर डॉग देखने वाली हूँ। सो आप लोग पेपर डॉग संडे को बना के रखना। मंडे आर लेक्चर इज़ देयर एंड आई विल सी ऑल द पेपर डॉग। सी हाउ नाइसली स्टैंड, कितना अच्छे से उसको स्टैंड किया हुआ है। ओके, टर्न करके। सो दिस इज़ योर पेपर डॉग। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? एंड चैप्टर फिनिश्ड, पार्ट 4 फिनिश्ड। आई होप यू गॉट एवरीथिंग। ओके, एंड सुपर सेंसेस चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सारे वीडियोस वापस देखोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। एवरीथिंग आई मेंशन इन वीडियोस एंड लेक्चर्स ऑल्सो आई विल टेक एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। आपको जो भी पूछना हो, कुछ वर्ड्स के मीनिंग पूछने हो, यू कैन मैसेज मी इन जूम लेक्चर। ठीक है, आई विल गिव यू ऑल द आंसर्स। नाउ हाउ ब्यूटीफुल इज डॉग, और कलरफुल भी बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।